Are you looking for relevant healthcare information? Log on to MediCircle and watch experienced medical professionals talking on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. मेरी सर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए ट्रेंडिंग हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स को लगातार लाते रहते हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए आपको जागरूक करने के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज व्यूज और ओपिनियंस को आपके अटेंशन में लाना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ टॉप के डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। हेलो, नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। टुडे ऑन आवर एड्स अवेयरनेस सीरीज वी हैव डॉक्टर नेहा गुप्ता विद अस। Dr. Neha Gupta is one of the best internal medicine and infectious disease specialist in Gurgaon and has an experience of 18 years in this field. She is an HIV/AIDS and sexually transmitted disease specialist who has graduated as an infectious disease specialist from the first batch of infectious disease qualified in India. Dr. Neha has a certificate of achievement from Johns Hopkins University, USA, and also has received Healthcare Award in 2016 from the Director General Health Services of India and Government of India for promoting health and wellness. She has had global experience in world's best hospitals, Hinduja, Medanta, CMC Vellore, and Detroit Medical Center, USA. Currently, she is founder director of Infectious Disease Clinic, first ID clinic in Delhi NCR, and senior consultant in Fortis Memorial Research Institute, Gurgaon. ये हमारे लिए बहुत ही privilege और pleasure की बात है that we have Dr. Neha joining us today on MediCircle. So welcome to MediCircle, Neha. How are you? Oh, I'm very fine, Prajita. It's an honor to be here as well. Thank you so much. Great. So let's quickly get on to our interview. And पहला question मेरा आपसे ये है कि AIDS कैसे होता है, नेहा? Thank you, Aprajita. And I would देखिए, हम सभी को मालूम है और ये काफी अवेयरनेस भी है इस बारे में, बट फिर भी एड्स कैसे होता है ये कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत लोगों के अंदर it's something which is very common. So there are basically three modes of transmission. The first, the majority of infections with HIV infections, they happen through they are basically sexually transmitted diseases first, and it happens in people who have that multiple sexual partners, or if there is an unprotected sex. And second mode of transmission is mother to child. So if the mother is affected and she's not on antiviral therapy, then the babies will get affected as well. And third mode of transmission is that if a person is taking contaminated syringes, so if there is, syringe, they are taking IV drugs, and if the needle is contaminated, then it can again transmit the infection from one person to another. ये एड्स शरीर को अफेक्ट कैसे करता है डॉक्टर नेहा? देखिए, जब कोई भी इंडिविजुअल HIV के वायरस से संक्रमित होता है, तो उस समय जो HIV वायरस है वो CD4 सेल्स को अफेक्ट करता है, और फिर HIV वायरस CD4 पॉजिटिव सेल्स में के थ्रू सेल्स के अंदर जाके रेप्लिकेट होता है, और फिर वो HIV RNA ह्यूमन जो CD4 पॉजिटिव सेल्स है उसके DNA में बेसिकली इंटीग्रेट होके then subsequently viral replication फिर से होता है. So then the HIV virus then replicates and forms multiple virions, and then the CD4 cells, they just burst out. So it kills the CD4 positive T cells, which are the helper T cells, and keeps on replicating. So what it does is basically over a period of time, the CD4 positive cells go down, and then the individual gets predisposed to a lot of infections, and these are known as opportunistic infections, which occur when the immunity is going down. Besides the infections, it also has many other non-infectious
impact on the health of the individual, and they include inflammatory changes. Like it can result in cardiovascular changes, metabolic diseases like diabetes, etc. And besides that, it can also result in some type of cancers. So it can result in infection, it can result in lifestyle diseases, it can also result in cancers as well as inflammatory conditions. जब HIV इन्फेक्शन होता है तो फिर HIV वायरस सबसे पहले CD4 पॉजिटिव सेल्स को अफेक्ट करता है, और उसके बाद में HIV वायरस सेल्स के अंदर जाके जो HIV RNA है वो ह्यूमन DNA के साथ में इंटीग्रेट होता है, मतलब वो मिल जाता है, और फिर नए वायरसेस रेप्लिकेट होके निकलते हैं। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो CD4 पॉजिटिव सेल्स है वो मर जाती हैं, बिकॉज वो बर्स्ट होती हैं या मर जाती हैं, और फिर HIV वायरस जो है रेप्लिकेट होता है। जैसे वो रेप्लिकेट होता है वो और ज्यादा सेल्स को अफेक्ट करता है। इससे क्या होता है कि जो CD4 पॉजिटिव हेल्पर T सेल्स हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी बना के रखती हैं, तो वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं, और जब इम्यूनिटी कम होती है तो फिर वो बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस को बुलाती है, मतलब कि वो इन्फेक्शन हो सकती है। और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के बारे में अगर हम बोले तो फिर अगर इम्यूनिटी कम होती है तो कुछ इन्फेक्शंस एक हायर लेवल पे होती हैं, कुछ लेवल्स जब CD4 बहुत कम हो जाता है या इम्यूनिटी बहुत कम होती है, जैसे CD4 200 से कम हुआ, तब वो इन्फेक्शंस होती हैं। इसमें से कुछ इन्फेक्शन जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, ये कभी भी हो सकती है, मतलब कि अगर HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल है तो अगर उसका CD4 काउंट अच्छा है तब भी हो सकती है, और अगर उसका CD4 काउंट कम है तब भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। जबकि कुछ इन्फेक्शंस हैं जिनको कि हम एड्स डिफाइनिंग इलनेसेस बोलते हैं, उसमें यूजुअली वो तब होती हैं जब CD4 काउंट बहुत कम है। तो इसमें हम कहते हैं कि फंगल इन्फेक्शन जैसे कि क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस जो ब्रेन को अफेक्ट करता है और कई बार सिर दर्द के साथ प्रेजेंट करेगा। फिर इसके अलावा हो सकता है डायरिया हो जाए जो कि CMV इन्फेक्शन होता है जब CD4 काउंट लेस देन 50 होता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी इन्फेक्शंस हैं जैसे कि PML हो गया, ये यूजुअली जब CD4 काउंट बहुत कम है तब होती है। तो एक तो हो गया कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, दूसरा हो गया कि ये बहुत सारी और बीमारियों को भी आक्रमित करता है, और उसमें ये है कि आपकी जैसे हार्ट डिजीजेस की प्रॉब्लम या फिर डायबिटीज प्रीडिस्पोज हो सकता है। इसके अलावा स्किन की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं लोगों को, डर्मेटाइटिस, स्किन की प्रॉब्लम्स, किडनी की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम। सो ये पूरे बॉडी में, पूरी ही बॉडी को और पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। इसके अलावा कई बार कुछ लोगों को मैलिग्नेंसीज या फिर कैंसर भी हो सकता है अगर HIV इन्फेक्शन ठीक नहीं किया गया तो। ऑल राइट, कुल मिलाकर यूं समझे तो कि ये ऐसी बीमारी है कि आपकी एक बार आपकी इम्यूनिटी अगर कम होती है तो नेचुरली शरीर में हर तरीके की बीमारी आने का रास्ता खुल जाता है। आप कमजोर हैं, आपका शरीर अंदर से कमजोर है, तो एक एक करके आपको कई तरीके की चीजें भी हो सकती हैं, बड़ी बीमारियों से लेकर छोटी से छोटी बीमारी तक। डॉक्टर, हम अब अगर बात करते हैं ART की, एक ART शब्द बहुत ज्यादा हम जब भी एड्स की बात होती है तो सुनते हैं, तो ये ART क्या ट्रीटमेंट है और ये किस प्रकार से काम करता है, इसके बारे में कुछ बताएं। सो देखिए, पहले ये माना जाता था कि अगर किसी को HIV इन्फेक्शन हुआ तो फिर ये शॉर्ट डेथ सेंटेंस है, बट ऐसा अभी बिल्कुल भी नहीं है। अगर HIV इन्फेक्शन होता भी है तो भी अब हमारे पास इफेक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है। जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी बेसिकली जो दवाइयां HIV इन्फेक्शन को रोक सकती हैं वो अच्छी दवाइयां हैं जिससे कि वायरस पूरा कंट्रोल हो सकता है। और अगर आप जो HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल है उनका वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है तो वो एक नॉर्मल नॉन HIV इंडिविजुअल की तरह अपनी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि उनकी लाइफ जो स्पैन है वो भी एक नॉन HIV इंडिविजुअल की तरह होगी। दूसरा, वो
शादी भी कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड द either the partner has to be again undetectable, and of course they should be it's very important that they should reveal their own status. I think this is very very important. And most importantly, अगर उनकी if they want to have kids, अगर वो बच्चे चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है अगर मदर फुल्ली अनडिटेक्टेबल है. सो आज अब हमारे पास में इफेक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है जो कि वायरल इन्फेक्शन को पूरी तरह कंट्रोल में कर सकती है. और एक HIV इंडिविजुअल जिसका कि वायरल लोड पूरी तरह से अनडिटेक्टेबल है, वो भी एक उसका लाइफस्टाइल या उसका लाइफ स्पैन एक नॉन HIV इंडिविजुअल की तरह ही रहेगा. इसके अलावा if the HIV positive couples want to conceive a baby, अगर वो अपनी फैमिली प्लान करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. इसमें ये इस बात का ख्याल रखना है कि जो मदर है उसको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी पूरी प्रॉपर्ली लेनी है, और फिर जब बच्चा होता है तो उसको भी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है कुछ समय के लिए, सो दैट उस बच्चे को इन्फेक्शन ना हो. और अभी जो भी हमारे पास एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है उससे अगर HIV पॉजिटिव कपल्स कंसीव करते हैं और उनको बेबी होता है तो वो नॉन HIV मतलब या फिर HIV नेगेटिव HIV होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है. जी चलिए, ART कैसे काम करती है ये तो हमें समझ में आ गया. एड्स के और ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, कुछ उनके बारे में आप डिटेल में बताइए नेहा. सो देखिए, सो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी HIV वायरस को सप्रेस करके रखती है, एंड विद द इफेक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी the HIV viral infection has been converted more so into a metabolic disease. इसका मतलब ये है कि over a period of time हमें diabetes, blood pressure या फिर obesity या फिर और प्रॉब्लम जैसे किडनी या फिर लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम, इन सबको मैनेज करना ज्यादा आना चाहिए इवन इन पेशेंट्स में. तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पेशेंट्स की जो डायबिटीज है या फिर शुगर है वो कंट्रोल में रहे. अगर उनको शुगर होता है तो फिर वो इफेक्टिव डायबिटिक मेडिकेशंस लें, बीपी के लिए मेडिकेशंस लें. कोलेस्ट्रॉल वगैरह बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका कंट्रोल में रहे, और अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें कि उनका किडनी फंक्शन या फिर लिवर फंक्शन सही है कि नहीं है. इसके अलावा मॉनिटरिंग जरूरी होता है एवरी 3 months विद CD4 एंड वायरल लोड. और ये बहुत जरूरी है कि एक लाइफस्टाइल, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं ताकि वो हमेशा स्वस्थ रहें. ऑल राइट, तो दैट वाज वंडरफुल. और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरी बात बताई कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए यूं भी कोई बीमारी आपको हो या ना हो, हमेशा हम यही रिकमेंड करते हैं कि बैलेंस लाइफ जीना चाहिए, एक जीवन शैली में एक डिसिप्लिन होना चाहिए, और वो आपने भी रिकमेंड किया है. तो लाइक ऑल डॉक्टर्स, सो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं और बड़ी से बड़ी बीमारी को आप ना सिर्फ हरा सकते हैं बल्कि उनके साथ जीना भी आप सीख सकते हैं. तो बहुत अच्छा लगा नेहा, आज आप इस इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़ी और आपने अपना इतना अमूल्य समय हमें दिया, इतनी अच्छी इनसाइट्स हमसे शेयर की. तो मेरी सर्कल की पूरी टीम की ओर से मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ. इट वाज रियली अ प्लेजर हैविंग यू टुडे. थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you so much. It was a pleasure as well, Aprajita. It was really a pleasure.